Good morning, students. Today, once again, I welcome you all to the online classes organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office, Jabalpur. And in today's video, we will start from where we left in the previous video or what we had completed in the previous video. As you remember, I have made two videos on this chapter, Human Eye and the Colorful World. In the first video, we studied the structure of prism, and in the second video we studied the human eye and the defects of the vision. Now today in this third video we are going to cover these important topics of this chapter. First of all, we will study what is total internal reflection, also called TIR, and the second topic will be rainbow, and third will be the introduction of atmospheric refraction. In the next video, we will cover what are the phenomena associated with atmospheric refraction. So first of all, let us start the total internal reflection. So I hope, dear students, you have studied this topic in chapter number 10, the light reflection and refraction. And if you have not studied or it is not clear to you, then let me explain this topic once again for you, so that it will be helpful for you to understand rainbow. Here a simple explanatory definition of TIR has been given. TIR की definition short भी हो सकती है, पर यहाँ पर जो मैंने लिखी है it is a self explanatory और self explaining definition है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं. सबसे पहले तो हम इसके नाम का मीनिंग समझते हैं. जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन. इवन देन हियर द वर्ड इज रिफ्लेक्शन. व्हाई दिस हैपेंस? जस्ट लिसन टू मी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्शन वर्ड है ये क्यों आया है? क्योंकि बेसिकली यहां होना था रिफ्रैक्शन, बट रिफ्रैक्शन की जगह होता क्या है? रिफ्लेक्शन होता है. When a light ray tries to refract from a denser medium to a rarer medium, first of all we will understand up to here. जब कोई लाइट रे रिफ्रैक्ट होने की कोशिश करती, ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्ट अभी वर्ड नहीं आएगा. जब कोई लाइट रे रिफ्रैक्ट होने की कोशिश करती है, कहां से? डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर TIR, दैट लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. लाइट रे शुड नेवर गो फ्रॉम रेयर to denser medium. If TIR has to take place, light ray must go from denser medium to rarer medium. So first condition is this. You have to remember two conditions. This is the first one. So when light ray tries to refract, refraction आप सभी जानते हैं. When light ray moves from one transparent medium to another transparent medium, it bends from its original pathway and otherwise it bends towards the normal or it bends away from the normal because of the change in the speed. This is called refraction. So here also transparent mediums are available. यहाँ पर दो मीडियम है, denser medium, rarer medium, दोनों ही ट्रांसपेरेंट हैं. तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ पर क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्शन. लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो ध्यान से सुनिएगा. When a light ray tries to refract from a denser medium to rarer medium, जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट होती नहीं है, होने की कोशिश करती है, यहां पर हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई. और दूसरी कंडीशन यहां से स्टार्ट होती है, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है डेंसर मीडियम में, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है. आई होप यू नो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है फॉर दैट पेयर. उस पेयर के लिए, जिन दो पेयर की हम बात कर रहे हैं, उन दो पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डेफिनेट होती है, फिक्स होती है. और अगर पेयर का मैं कोई भी एक मीडियम चेंज कर दूं
तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, दिस इज द सेकंड कंडीशन। ध्यान रखिएगा, आपको यह भी पूछा जाता है पेपर में, व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर द TIR। So the angle of incidence is greater than critical angle for that pair. Now what happens? The light ray is totally internally reflected. ध्यान रखिएगा, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होती, लाइट रे टोटली मींस पूरी की पूरी, मतलब इस घटना में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। टोटल क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए इसमें वर्ड है टोटल रिफ्लेक्शन। टोटल रिफ्लेक्शन मींस इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है। द लाइट रे इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड इन द सेम डेंस मीडियम। तो डेंस मीडियम में ही जिसमें से लाइट रे आ रही थी, लाइट रे उसी मीडियम में लौट जाती है। Why the word internally? Because the light ray never enters in the second medium. लाइट रे कभी भी सेकंड मीडियम में एंटर नहीं करती है, ये हमेशा फर्स्ट मीडियम से आती है और फर्स्ट मीडियम में ही चली जाती है। मैं आपको भी इसका एग्जांपल बोर्ड पर डायग्राम के साथ समझाने वाला हूं। तो इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन इंक्लूडिंग ऑल द टू कंडीशंस that must be fulfilled in order to conduct the total internal reflection. तो कुछ एग्जांपल मैं समझाता हूं कि अपन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड की जो चमक होती है वो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। मिराज इन द डेजर्ट, डेजर्ट में जो मिराज आपको नजर आता है, मिराज में कहते हैं हिंदी में मृग मरीचिका। व्हाट हैपेंस इन दिस, आई विल आल्सो एक्सप्लेन दिस ऑन द बोर्ड, कि आपको दूर से ऐसा लगता है कि पानी है और उसमें पेड़ की जो परछाई है, दैट शैडो इज मूविंग, सो दैट यू फील दैट एट सम डिस्टेंस वाटर सोर्सेज, वाटर बॉडी इज देयर, बट दैट इज जस्ट एन इल्यूजन. It is called mirage, and this illusion, this mirage is because of TIR. One more very great fiber for the communication is optic fiber. It is also based on the process or the concept of total internal reflection. अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई हो तो मैं आपको इसका डायग्राम अच्छे से समझाता हूं. You can also write this definition as the answer of TIR. Now, this is the interface. Interface, here we can say glass. It is water. Glass is denser. Water is rarer. Okay, this is medium number 1, medium number 2. The light ray is coming from here. This is I. Okay, this is incident ray. The incident ray is coming from the denser medium. जैसा कि मैंने आपको बताया, the first condition should be fulfilled, that light must go from denser to rarer medium or should try to go. इसको जाने की कोशिश करनी होगी कहां से? ग्लास से वाटर में. अब आपको ये पता है कि जब डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट आती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है. दिस इज R. ओके, दिस इज R. अभी आप कहेंगे सर ऊपर तो गई नहीं. ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी छोटा लिया है. अब मैं ग्रेजुअली इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा. ओके, जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये R भी बढ़ जाएगा. एक बार और बढ़ाऊंगा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस,
अब लाइट रे, ध्यान रखिएगा, इस सरफेस पर टच करती हुई, ग्लेज करती हुई चली जाएगी। ये चली गई। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों लाइट रेस को मिटा देता हूं, केवल उस लाइट रे को लेता हूं जिस पर, अब देखिए गौर से, इस लाइट रे के लिए आप देख सकते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये लाइट रे आपकी इस तरह से सरफेस को टच करती हुई चली गई है। इस केस में आपने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल पर रिफ्रैक्शन एंगल आर बिकम्स 90 डिग्री। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? एक ऐसा इंसिडेंस एंगल आता है और ये कंडीशन केवल तब पैदा होती है व्हेन लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। कभी भी आपको ये कंडीशन नहीं मिलेगी जब लाइट रे रेयर टू डेंस जाएगी, ठीक है? तो इसमें मैंने क्या किया है आपके लिए कि एक ऐसा इंसिडेंस एंगल पर लाइट रे को मैंने इंसिडेंट कराया है जिस एंगल पर आपकी रिफ्रैक्टेड रे सरफेस को ग्लेज करती हुई चली जाती है। क्या करती हुई चली जाती है? सरफेस को ग्लेज करती हुई चली जाती है और यहां पर R बराबर 90 डिग्री होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से देता हूं जो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप एक तालाब के किनारे पर बैठे हैं, सभी बच्चे इस बात से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। मान लीजिए आप एक तालाब के किनारे पर बैठे हैं और आपके हाथ में पत्थर है। जब आप उस पत्थर को तालाब के पानी में इस तरह से वर्टिकली या थोड़े से एंगल पर फेंकते हैं तो वो पानी के अंदर चला जाता है। आप लोगों ने ये करके भी देखा होगा। लेकिन जब आप उसका एंगल, फेंकने का एंगल हल्का सा और टेढ़ा करते हैं और इस तरह से फेंकते हैं तो एक आध बार वो और पानी में चला जाएगा, बट एट अ पर्टिकुलर थ्रोइंग एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल पर जब आप थ्रो करते हैं तो वो पानी की सरफेस पर जंप करता हुआ 2-3 जंप के साथ वो सीधा चला जाता है, वो पानी में अंदर नहीं जाता है। क्या आपने ये करके देखा है? अगर आपने ये करके देखा है तो अभी सेम वही घटना हो रही है। इस समय आपने लाइट रे को इतने ज्यादा एंगल पर भेजा है कि वो लाइट रे सरफेस पर ग्लाइड करती हुई जा रही है। और जब ऐसा होता है तो इस समय जो इंसिडेंस एंगल होता है हम उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। What is critical angle? Critical angle is that particular value of incidence angle. Critical angle is that particular value of incidence angle for which the angle of refraction becomes 90 degree. बात समझ में आई आपको? इंसिडेंस एंगल वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है। अब यहां तक तो आपने समझा क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल से आगे की कहानी है TIR, समझिएगा। नाउ यू जस्ट मूव ऑन इंक्रीजिंग द इंसिडेंस एंगल अ लिटिल बिट हायर। नाउ यू हैव इंक्रीज्ड दिस एंगल अप टू हियर। सपोज कीजिए दिस एंगल इज 50 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, अब आपने इंसिडेंस एंगल से ज्यादा कर दिया। अब आप एक चीज देखें, क्रिटिकल एंगल पर तो यहां तक थी, लेकिन जब थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा तो क्या ये ऐसी नहीं हो जाएगी? बात समझ में है? When the angle of incidence is greater than critical angle, when the angle of incidence is greater than critical angle, then the angle of refraction becomes more than 90 degree. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 से भी ज्यादा हो जाता है। यू कैन सी दिस। ओके, इस केस में होता क्या है? लाइट रे सेकंड मीडियम में एंटर नहीं कर रही है, यानी कि रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्शन। As you have studied in the reflection, the light ray comes from the first medium and goes back in the same medium at the same angle. So here, if the angle is 60 degree, then this angle will also be 60 degree. Here the light ray will follow not the rules of refraction. Here the light ray will follow the rules of reflection. What is the rule of reflection? The very important rule is the incidence angle is equal to the reflection angle. Here is the normal. ये तो सेकंड रूल आपको पता ही है। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, होना था रिफ्रैक्शन, हो गया रिफ्लेक्शन।
That's why it is called total internal reflection. Now why internal? Internal इसलिए क्योंकि फर्स्ट मीडियम टू फर्स्ट मीडियम सेकंड का काम ही नहीं आया. That's why it is called internal reflection. Why total? Because at this condition not even 1% light ray is refracted. इसमें जरा भी light ray refract नहीं होती है. That's why it is called total. ओके, आई होप आपको TIR समझ में अब आ गया होगा. साथ साथ आपने इंसिडेंट और क्रिटिकल एंगल को भी समझा होगा. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है रेनबो. अच्छा, मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं कि जो मिराज होता है, मिराज का डायग्राम, मिराज कैसे होता है. लेकिन मिराज के लिए आपको एक बार एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी सीखना पड़ेगा. मैं आपको शॉर्टकट में सिखा देता हूं. यह है आपका रेगिस्तान. ओके, दिस इज सैंड. Here one tree is there and ये कोई एनिमल है, ऊंट हम मान सकते हैं. इसके ऊपर एक पर्सन ये बैठा हुआ है, ये ऊंट है. ओके, और इसके ऊपर एक ह्यूमन बैठा हुआ है. अब इसको मिराज कैसे ऑब्जर्व होगा, थोड़ा गौर से देखिएगा. आपको पता है कि यहां पर एयर है, ये एयर की लेयर्स है, ये एयर की लेयर्स है. चूंकि जमीन गर्म है, जमीन गर्म है तो गर्म हवा, यहां पर जो हवा होगी ये भी कैसी होगी, हॉट होगी. और इसके ऊपर की थोड़ी कैसी होगी, कूल होगी. और ऊपर जाएंगे तो कूलर होती जाएगी और ये सबसे कूलेस्ट होगी. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गर्म रेत के टच में जो हवा होती है वो सबसे ज्यादा हॉट होती है. और हॉट होने की वजह से ये सबसे रेयर भी होती है. कैसी होती है, ये रेयर होती है. इसका मतलब है ऊपर की लेयर्स डेंस होती हैं और नीचे की लेयर्स रेयर होती हैं. ये बात आपको समझ में आ गई. नाउ लाइट रे कम्स फ्रॉम हियर, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हुई, और ये देखिए आप ध्यान से नॉर्मल से दूर जाती जाएगी और एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल बनेगा, किस एंगल पर, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देयर विल बी अ वर्चुअल, एक वर्चुअल इमेज बनेगी. यहां पर क्या बनेगी, एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो उल्टी होगी. फिलहाल अब उल्टी होगी, आपने पढ़ा होगा वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर वर्चुअल इमेज क्यों बन रही है, क्योंकि मैं रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाने, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाने पर जो इमेज बना रहा हूं वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी. यहां पर एक झूठी इमेज बनती है और ये इमेज हवा के मूव करने की वजह से मूविंग होती है. कैसी होती है, मूविंग होती है. और इस वजह से आपको लगता है कि कहीं पानी है और उस पानी में हमें इस ट्री की इमेज नजर आ रही है. सो यू थिंक दैट सम वाटर बॉडी इज नियर, सो यू ऑब्जर्व मिराज. आई होप आपको मिराज समझ में आया होगा. तो मिराज आपको कब मिलेगा, जब गर्मी होगी बहुत ज्यादा और आप किसी रेगिस्तान में होंगे, और रेगिस्तान में होने की वजह से आपको ट्री की उल्टी इमेज मिलेगी. क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. अच्छा, एक चलिए, रेगिस्तान में तो ज्यादातर बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा डेली लाइफ एग्जांपल देता हूं जिसे आप तुरंत कनेक्ट कर पाएंगे इस टॉपिक को. गर्मियों के दिनों में जब आप हाईवे पर ट्रेवल करते हैं, गर्मी के दिनों में जब आप अपनी कार में हाईवे में ट्रेवल करते हैं, हाईवे पे, तो आप दूर देखते हैं कि सड़क पे पानी फैला हुआ है. कितनों ने ये बात महसूस की है, मुझे बताइएगा. तो जब आप सड़क पर फैला हुआ पानी देखते हैं, बट यू गो नियरर, यू जस्ट सी दैट द वाटर वैनिशेस एट अ ग्रेट स्पीड. जब आप पास जाते हैं और देखते हैं कि अरे यहां तो कोई पानी ही नहीं है, इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन ऑफ माई माइंड. दैट वॉज नॉट इल्यूजन, दैट वॉज द सेम थिंग. That was the image
ऑफ स्काई। ये स्काई आसमान की इमेज होती है नीले रंग की, जो आपको जमीन पर सड़क पर नजर आती है और आपको लगता है ये पानी फैला हुआ है, क्योंकि पानी भी नीले रंग का होता है, आसमान भी नीला होता है, तो आपको लगता है कि दिस इज वाटर, बट दिस इज नॉट वाटर। ये पानी नहीं होता है हाईवे पर, वो सिर्फ मिराज होता है, यानी कि वो भी TIR का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम रेनबो पे जा सकते हैं। Now, rainbow. रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, प्रकृति की एक बहुत ही खूबसूरत घटना। हम सभी ने रेनबो जरूर देखा होगा, पर हम ये नहीं जानते कि आखिर ये रेनबो बनता कैसे है। हाउ दिस रेनबो इज फॉर्म्ड इन द नेचर। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टुडे फॉर यू that what is the process of rainbow formation and which phenomena are involved in this natural incident. So rainbow, there are 3 or 4 physical phenomena which are sequential, which are in sequential manner to conduct the rainbow. First of all, let me show you through a diagram. This is a raindrop. What is this? This is a raindrop. I hope you all know that rainbow is always formed after the rainfall when the sun shines. Rainfall होने के बाद जब सन निकलने लगे उसी समय आपको रेनबो नजर आता है, और ये पूरे दिन में आपको सिर्फ शाम के समय नजर आता है। अब ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे वजह ये है कि जब सन हॉरिजॉन पर होता है, कहां पर होता है सन? हॉरिजॉन पर होता है। ये सन है और ये हॉरिजॉन पर है, और लाइट रेस और ठीक आपकी जो पीठ है, आपकी पीठ सन की तरफ है, यानी कि आप यहां पर हैं। आपकी बैक सन की तरफ होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है, सन रेस कम फ्रॉम सन इन दिस वे एंड एंटर इनसाइड द वाटर ड्रॉप, और वाटर ड्रॉप के अंदर एंटर करती हैं। तो जैसे ही सनलाइट एंटर करती है, फर्स्ट घटना होती है जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या होती है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहां पर लाइट का डिस्पर्जन होता है और लाइट रे 7 कलर्स में बट जाती है। हियर I will not divide the sunlight in 7 colors because it will not look good. So I have divided this light in white light into only 2 colors. First of all, this is red color and this is the violet color. बाकी के पार्ट कलर के बीच में है, I have just not shown. So the first phenomenon that takes place is the dispersion of light. लेकिन आपने पढ़ा है कि डिस्पर्जन कौन करता है? प्रिज्म करता है। कौन करता है डिस्पर्जन? प्रिज्म करता है, पर ये तो प्रिज्म नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ प्रिज्म, दिस इज अ लिक्विड प्रिज्म। हियर एट द टाइम ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, वाटर ड्रॉप्स एक्ट लाइक लिक्विड प्रिज्म। किसकी तरह काम करती हैं? लिक्विड प्रिज्म की तरह काम करती हैं, एंड दे डिस्पर्स द लाइट। ये क्या करती हैं? लाइट को डिस्पर्स कर देती हैं इनटू 7 कलर्स। अब लाइट रे इस वाटर ड्रॉपलेट की सेकंड सरफेस पर आ चुकी हैं, जहां से उन्हें बाहर जाना है, जहां से उन्हें बाहर जाना है। लेकिन वेट, अब ध्यान रखिए, अब होगी सेकंड घटना TIR। कैसे होगी देखिएगा। यह है आपका वाटर, और वाटर ड्रॉपलेट के बाहर क्या है? एयर है। चेक कीजिए कि क्या लाइट रे वाटर से एयर जा रही है तो डेंसर से रेयर जा रही है क्या? डेंसर से रेयर जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है यस, कि हाँ लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है। हमने चेकलिस्ट तैयार की, एंड इन दिस चेकलिस्ट वी हैव 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज वेदर द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। वी गॉट द आंसर यस, लाइट रे वांट
to go from water to air. Water is denser, air is rare. So the first condition of TIR is fulfilled, that the light ray wants to go from denser to rare medium. फर्स्ट चेकलिस्ट का क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव आंसर आया है यस में। अब दूसरी कंडीशन क्या है? इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो इसका आंसर कभी यस होता है, कभी नो होता है। ध्यान रखिएगा, हर बार सन की पोजीशन ऐसी नहीं होती, हर बार सन की पोजीशन ऐसी नहीं होती कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इसीलिए आपको हर बार रेनफॉल के बाद रेनबो नजर नहीं आता है, कभी कभी नजर आता है। कभी कभी कब नजर आता है? सन की एक स्पेशल पोजीशन पर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, उस समय आपको TIR होगा और आपको रेनबो नजर आएगा। तो अब अपन ने माना सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यस है, क्योंकि हम रेनबो पढ़ रहे हैं, रेनबो के लिए हमें इसको एंगल को ज्यादा मानना ही पड़ेगा। सो द सेकंड कंडीशन इज आल्सो फुलफिल्ड, that the angle of incidence is greater than the critical angle. In this case, the light ray is totally reflected back in the same medium. ये रिफ्लेक्ट हो गई। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। Here at this point reflection is taking place. कौन सा रिफ्लेक्शन? Total internal reflection is taking place at this point, and the light ray, red and violet and all the 5 colors in between the red and violet, they are not moving out of the raindrop. वो वाटर ड्रॉप से बाहर नहीं जा रहे हैं, they are reflecting back. They are reflecting back in the same water drop. This is called TIR. Second phenomenon that takes place is TIR. Now, when the light ray finally emerges, when the light ray, this is Earth, when the light ray finally emerges out from the raindrop, refraction takes place. What takes place? Refraction takes place, and finally light ray enters in the eyes of the observer, and here you see the red color, here you see the violet color. This is red, this is violet. I hope it is clear to you. ये रेड है, ये वॉयलेट है, और इस तरह रेनबो इस अर्थ पर जो ऑब्जर्वर है उसको नजर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो, बट नॉट इन योर सिलेबस, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो हैज रेड कलर एट द टॉप एंड वॉयलेट कलर एट द बॉटम बिकॉज ऑफ ओनली वन TIR. TIR takes place only one time, but in the secondary rainbow, inside the water drop, TIR takes place 2 times. TIR कितनी बार होता है? 2 बार होता है। उस 2 बार होने की वजह से रेड और वॉयलेट का ऑर्डर पलट जाता है। एट द टॉप वॉयलेट इज देयर, एट द बॉटम रेड इज देयर। दैट इज अ वेरी रेयर फिनोमेना, ये बहुत ही कम होती है। दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी रेनबो, ओके, बट यू हैव टू स्टडी ओनली द प्राइमरी रेनबो इन क्लास 10th। प्राइमरी रेनबो ही आपको पढ़ना है, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। आई होप आपको रेनबो समझ में आया होगा। तो रेनबो बनने के पीछे एक घटना नहीं है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, TIR है, एंड द थर्ड इज रिफ्रैक्शन। थर्ड इज रिफ्रैक्शन। सो दीज 3 phenomena take place in a sequential manner. Sequential manner means first the light will be dispersed, then the dispersed light will undergo total internal reflection and then refraction. Finally, after refraction, light rays emerge out of the raindrop and enter in the eyes of the observer located on the earth, and he observes the primary rainbow. Primary rainbow में रेड ऊपर होता है, वॉयलेट नीचे होता है। सेकेंडरी में वॉयलेट ऊपर होता है, रेड नीचे होता है। प्राइमरी में TIR एक बार होता है, सेकेंडरी में TIR के बाद अगेन TIR होता है, 2 बार TIR होता है, एक के बाद एक। आई होप आपको ये रेनबो समझ में आया होगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेनबो हर बार नजर क्यों नहीं आता? व्हाई डू वी नॉट ऑब्जर्व रेनबो एवरी डे आफ्टर द रेनफॉल? उसकी पीछे वजह यह होती है, बिकॉज ऑफ द सन्स पोजीशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज नॉट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसमें TIR होना होता है, और TIR की शर्त क्या है?
angle of incidence must be greater than critical angle, और हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होता, तो हमारा रे को भी हर बार नजर नहीं आता है। ओके, सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, किस ऑर्डर में होती हैं। तो फर्स्ट टेक्स प्लेस डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सेकंड इज TIR एंड थर्ड इज रिफ्रैक्शन। सो I hope this topic is clear to you. Now we can move on to the next topic, that is atmospheric refraction. आई होप आपको फिजिक्स के ये टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, atmospheric refraction. Again, the refraction word is here, so you have to study your well-known refraction process here, but the refraction that takes place inside the atmosphere, आपको वो रिफ्रैक्शन पढ़ना है जो एटमॉस्फेयर में होता है। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। दिस इज अर्थ, ये हमारी अर्थ है। ओके, और यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, एंड हियर वन स्टार इज देयर। दिस इज वन स्टार। दो स्टार्स डू नॉट लुक लाइक दिस, बट इट इज कॉमन कंसेप्शन दैट वी मेक देम, ड्रॉ देम लाइक दिस, अदरवाइज दे आर spherical. Now you know that stars are very very far from us. The nearest star that is the sun, वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, लेकिन और जो बहुत सारे स्टार हैं वो सन से भी बहुत दूर हैं। इसका मतलब है वो वैक्यूम में है, VACUUM, वैक्यूम। तो वो कहां पर है? वो वैक्यूम में है। ऑल द स्टार्स आर इन वैक्यूम बिकॉज देयर इज नो एयर। और एयर कहां पर है? हमारे आसपास। दिस इज एटमॉस्फेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, एंड सो these are the layers of atmosphere. And you know that when we move upward from the surface of earth, air becomes rare. हवा कैसी होती जाती है? बहुत रेयर होती जाती है। आपने देखा होगा जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं, पहाड़ पे जो चढ़ते हैं लोग, वो सिलेंडर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन तो क्या, सारी गैसेस प्रॉपर्टी इतनी हाइट पर कम होती है। तो वो तो है बात सिर्फ 8-9 किलोमीटर की। यहां बात चल रही है हमारा एटमॉस्फेयर लगभग 400 किलोमीटर तक होता है। तो ये बात तो तय है कि 400 किलोमीटर तक पहुंचने पर हवा बहुत ही कम रह जाती है, नेग्लिजिबल एयर रह जाती है, और 400 के ऊपर तो मिलती ही नहीं है। मतलब 400 से लेकर करोड़ों किलोमीटर तक सिर्फ वैक्यूम है। अब आपको यहां पर क्या समझना है कि नीचे आने पर एयर डेंस हो रही है। क्या हो रही है? नीचे आने पर एयर डेंस हो रही है। यहां पर रेयरेस्ट है, ये रेयरर है, ये रेयर है, और ये डेंस है, और ये डेंसेस्ट है। इस तरह नीचे आने पर हम डेंस होते जा रहे हैं। क्या होते जा रही है? एयर डेंस होती जा रही है। नाउ लाइट रे कम्स, ये लाइट रे आई। अब चूंकि ये रेयर टू डेंस जा रही है, नॉर्मल की तरफ झुकेगी, हल्की सी झुकेगी। लाइट रे और झुकती हुई, ये लाइट रे झुकती हुई और रेयर टू डेंस आ रही है, देन सक्सेसिवली it will bend towards the normal, and here the light is obtained here. So
as you saw that the light ray that you are getting on the earth, it is not the straight light ray, it is after successive multiple atmospheric refraction. इसमें क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में होने वाला रिफ्रैक्शन है जो कि एक बार नहीं हजारों बार हो रहा है। आप तक जो लाइट पहुंच रही है वो हजारों बार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होकर आ रही है। तो आपको जो लाइट रे मिलती है वो हल्की सी क्या मिलती है, डिस्प्लेस्ड मिलती है, रिफ्रैक्टेड मिलती है। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो इन शॉर्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द रिफ्रैक्शन performed by the layers of atmosphere when light ray enters in the earth atmosphere. जब लाइट रे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो क्या होता है, इट गोज थ्रू सक्सेसिव रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डेंसिटी। डिफरेंस इन द डेंसिटी आप देख रहे हैं, द अपर मोस्ट लेयर इज रेयरेस्ट, देन इट सक्सेसिवली बिकम्स denser and densest. So light ray continuously enter from rare to dense, rare to dense, rare to dense, rare to dense until it reaches the earth surface. तो जब तक ये अर्थ की सरफेस पर आती है ये रेयर टू डेंस में आती जाती है एंड कॉन्स्टेंटली इट मूव्स, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये कॉन्स्टेंटली नॉर्मल की तरफ मूव करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है एंड फाइनली it enters in the eyes of the observer. तो ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है, कई सारी नेचुरल फिनोमेना हमें देखने को मिलती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्योंकि ये सारी जो फिनोमेना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कनेक्टेड है, तो मैं आपको आज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ा देता हूं। डायग्राम इसका यही है। होता क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? एज आई टोल्ड यू, स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, सो दे एक्ट लाइक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये किसकी तरह काम करते हैं? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करते हैं। पॉइंट सोर्स मींस ये बहुत ही बारीक एक बिंदु के आकार में हमें चमकते हुए दूर नजर आते हैं। तो जब ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आती है सक्सेसिव एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करती हुई हमारी आंखों में एंटर करती है, सो अगेन वी सी अ वर्चुअल इमेज ऑफ द स्टार। हमें क्या मिलती है? वर्चुअल इमेज ऑफ द स्टार मिलती है जस्ट बिसाइड्स द स्टार। एक्चुअल स्टार के ठीक बगल में हमें क्या मिलती है? एक वर्चुअल इमेज मिलती है स्टार की। एंड नॉट ओनली द वर्चुअल इमेज, इट दिस इमेज कीप्स मूविंग। ये इमेज क्या करती रहती है? कीप्स मूविंग। क्यों मूव करती है? बिकॉज द लेयर्स ऑफ द एयर आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली मूविंग, सो दिस इमेज ऑल्सो सीम्स मूविंग ऑल द टाइम। दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हम इसी को कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। So basically the twinkling of the stars is because of atmospheric refraction, and because of this atmospheric refraction we see a virtual image. We see a virtual image of the star just near the star, and this virtual image keeps moving because the layers of air are also moving all the time. So this is called the twinkling of star. Now one more question that is very very important from the exam point of view: why do planets not twinkle? Planets not twinkle, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि प्लैनेट क्यों नहीं करते ट्विंकल। तो इसके पीछे दो वजह हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लैनेट हमारे बहुत पास है। जब प्लैनेट हमारे बहुत पास होते हैं तो वो हमें बिंदी की तरह नजर नहीं आते। दे डू नॉट एक्ट लाइक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सबसे मेन रीजन क्या रहेगा? वो हमारे पास है, सो दे डू नॉट एक्ट लाइक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो इस वजह से हमें वो मूव करते नजर नहीं आते हैं। ओके, आई होप दिस आंसर इज आल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट फिनोमेनन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, समझ में आते हैं मेरा लेक्चर, तो आप मुझे YouTube पर सर्च कर सकते हैं मनीष बंसल क्लासेस के नाम से। Till then, take care. Thank you. Bye bye.